أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے اشارے کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے اس کا چارٹ بھی دیکھا تھا، لیکن لاسٹ ٹائم ہم نے قریب کے اشارے کے بارے میں پریکٹس کی تھی اور آج ہم دور کے اشارے کے بارے میں پریکٹس کریں گے۔ اچھا، اور ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا ماں اور من کا استعمال، کہ ماں عاقل کے لیے، غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہماری اس کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں میرے ساتھ۔ زرینہ جبیں مائک دیکھیے اپنا۔ زرینہ جی مائک انمیوٹ کیجئے۔ سمینہ جی آپ مائک دیکھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سمینہ جی پڑھیے سب سے پہلے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ الدرس الثانی، جی تو بتائیے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا سبق، لیسن 2، جی بالکل، جی ذالکا۔ دوسرا سبق، شاباش، ذالکا۔ بتائیے کون سا اشارہ ہے یہ؟ ذالکا مذکر اشارہ ہے، دور کے ہوں لیے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اشارے کا ٹیبل سنائیں گی؟ ذالکا دانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا۔ اور قریب والا بھی سنا دیں؟ سوری، جی قریب کا اشارہ اس کا بھی سنائیں نا، قریب، پورا ٹیبل ہاذا سنائیں۔ ہاذانی ہاؤلائی، ٹھیک ہے، ہادہی ہاتانی ہاؤلائی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، پچھلے میں ہم نے حاضہ کی پریکٹس کی تھی، آج ہم ذالکا قریب کے اشارے کی پریکٹس کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ذالکا واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ ذالکا واحد ہے، واحد ہے۔ اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر، واحد مذکر۔ مذکر ہے، مذکر ہے۔ جب بھی ہم کسی اسم کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں فوری طور کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے یا جمع ہے، واحد مثنیٰ جمع، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کا جنس بھی دیکھنی ہوتی ہے اور عدد بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ تو چار چیزیں ہیں جو ہم کسی بھی اسم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ہم اس کو چار پہلوؤں سے چیک کرتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا کیا ہے، ٹھیک۔ اس کے جی بعد پھر ہم اس کی اعراب کے مطابق اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہمارے اوپر کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا بنے گا۔ جی، چلیے اب سٹارٹ کیجئے، پہلا جملہ پڑھیے۔ ما ذالکا، ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے۔ وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ مجھے مبتدا اور خبر بتائیں گی؟ ما ذالکا مبتدا، ما خبر۔ ہوں، ٹھیک ہے، اور ماں کو ہم یہاں پر کیا بنا رہے ہیں؟ اچھا ما ماں کون سا ہے؟ خبر مقدم ہے اور ذالکا ہوں، مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہے، لیکن ماں کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ مطلب ماں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے غیر طرح کے عاقل ہم کے آگے بھی لیے، جا کر پڑھیں گے۔ ماں غیر عاقل کے لیے ہے اور ماں استفہامیہ ہے، استفہامیہ صحیح۔ ہاں، ٹھیک ہے، جی، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ذرا اس کا مجھے جواب بھی پڑھ دیجئے۔ ذالکا نجم، وہ ہوں، ستارہ ہے، ٹھیک، وہ ایک ستارہ ہے۔ ایک ستارہ، ہاں صحیح، ہم وہ نکرہ کا ترجمہ ایک سے کرتے ہیں نا، تو یاد جی رکھیے گا جی کہ ہم نے جی۔ کہنا ہے وہ ایک ستارہ ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے
कि ये आकिल है या गैर आकिल है, जिसको मैंने सर्कल आकिल। किया। आकिल है। आकिल है। तो अगर इसके बारे में मैंने पूछना हो तो फिर मैं माँ की जगह क्या लगाऊंगी? मन। 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 कैसे होगा? मन तिल का, अगर ये फीमेल दिख रही है मुझे तो मन तिल का। जी। ये कौन है, और आपने तिल का क्यों लगाया? नो, अगर दूर है तो तिल का, नजदीक होगी तो मन हाथ ही। ये कौन है? हाँ ठीक, शाबाश। ठीक बताया आपने। तो फिर क्या जवाब देंगी आप? अम, मन हाजिही। हाजिही। इमरातु। अच्छा चलें, बिन तो कर लें, वो ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा बिंतु कि ये वो सही। ये एक लड़की है। हम्म। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस जालिका का मुसन्ना बनाएं और नजमुन का भी मुसन्ना बनाएं, तो कैसे बनाएंगी? दानिका नजमुन। नहीं, तो नजमान। इसको भी तो नजमानी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है, रफा। और खबर की? नकीरा। मैं तो अपनी क्लास में नहीं लिखी हूँ। ये तुम क्लास में जो मैं तो बताता हूँ तुमने क्या क्या खबर की सीखा। भी ठीक है। एराबी हालत रफा होती है। नक रफा। रफा। अब हाँ, अगर मैं आपसे एराबी ये हालत, हाँ वुसत नहीं, एराबी हालत दोनों की रफा जी होगी। जी जी, सही। और वसत क्या होती है? मुब्तदा की मारिफा और खबर की नकीरा। हम्म। अच्छा, और यही पहचान होती है जुमला इस्मिया की, कि पहला हिस्सा मारफा, दूसरा हिस्सा नकरा। मारफा और नकरा जब मिलते हैं तो एक जुमले का मतलब देते हैं। ठीक है, जी। एक जी। प्रॉपर जुमला बन जाता है। और फिर इसमें हम अपनी उर्दू के हिसाब से है का तर्जुमा ऐड कर देते हैं। ये सितारा है, वो सितारा है, ये लड़की है। हमें ऐसे तो नहीं ना मिल रहा इसके अंदर। जी। ठीक है, तो हमें इस तरह से मारफा और नकरा को जब हम मिलाकर बोलते हैं, मजमुआ इनका जब हम लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक जुमला इस्मिया का तर्जुमा कर देता है, मुकम्मल जुमला आ जाता है हमारे सामने। जी। अच्छा, अब अगला जुमला भी पढ़िए। हाजा मस्जिदुन हम्म। वजालिका बैतुन। ठीक है, ये तर्जुमा कीजिए। ये हम्म। एक मस्जिद है, वो हम्म। एक घर है। वाह का नहीं आपने तर्जुमा और किया। और हाँ जी, ये हम्म। एक मस्जिद है और वो एक घर है। अच्छा ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर हाजा क्या है, मुब्तदा यहाँ खबर में से? मुब्तदा है। हाजा मुब्तदा। और मस्जिदुन खबर। मस्जिदुन खबर। फिर? ठीक है, और वाव क्या है यहाँ पर? वाव। जारा, हुर्फ जारा। अच्छा, चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। अब मुझे अच्छा। आप ये बताइए कि यहाँ पे जालिका क्या है? जालिका मुब्तदा है, बैतुन हम्म। खबर। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि ये मुब्तदा और खबर है। ठीक है, जी। और इसको भी आपने कहा कि मुब्तदा और खबर है। ठीक है, जी। तो यहाँ आपको ये कितने जुमले नजर आ रहे हैं, एक है या दो? दो जुमले हैं। दो जुमले हैं। अब इन दो जुमलों को आपस में उनका कनेक्शन बनाने के लिए एक वाव आतिफा लेकर आते हैं। ठीक अच्छा। है, ये आपने देखा, जो वाव है जी। बीच में, इसको हम कहते हैं वाव आतिफा, और ये और के मायने देता है। ठीक है, अब हम जी। इसका तर्जुमा आपने किस तरह से किया था, दोबारा कीजिए। ये एक मस्जिद है और हम्म। वो एक घर है। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ये जो ऐसे जुमलों के बीच में वाव भी बहुत तरह का हम पढ़ेंगे। तो ये जो वाव सिंपल हमने अभी पढ़ना है, ये वाव आतफा है। ठीक है, दो जुमलों को आपस में मिला देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, जोड़ देते हैं उनको। ठीक है, चले जी। अगला जुमला भी पढ़िए। हादा हिसानुन वजालिका हिमारुन। ठीक है, तर्जुमा ये कीजिए। ये एक घोड़ा है और हम्म। वो एक गधा है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर उन्होंने हमें दोनों इशारों का इस्तेमाल बताया है दोबारा से, ताकि हमें उसका फर्क पता चल जाए। आप ये देखें कि यहाँ पर जो हिसान है वो करीब है, और हिमार दूर, दूर। उन्होंने हमें थोड़ा सा दूर करके छोटा करके दिखाया, कि ताकि हमें ये उनका फर्क पता चल जाए
کہ ذالکا دور اور حاضہ قریب کے لیے آئے گا. اچھا ان کی بھی مثنیٰ بنائیے ذرا ہادانی پورے جملے کو. ہوں ہادانی حسانانی ہوں ہوں ودانکا ہمارانی. ہوں ٹھیک ہے. اچھا اس کی آپ کو جمع آتی ہے احسان ان کی؟ حسان ان کی حس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حسن حسن. سحاو حمار ان کی سواد حمر. جی جی سواد کی طرح ہی سواد سے لکھا جی جائے گا. ہا سوا نون حسن. ٹھیک ہے. حسن. اچھا اور حمار ان کی جمع کیا ہوگی؟ ہم حمر. عمرن. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ہم کیا اشارہ استعمال کریں گے اس کے ساتھ؟ ہاؤلائی حسن و ہاؤلائی غیر عاقل کی جمع ہے نا؟ ہاؤلائی. غیر عاقل کی جمع ہے نا؟ جی جی تو پھر ہم اشارہ کون سا ہاں استعمال کریں گے؟ صحیح. ہادہی ہادہی حسن. ہوں اور دوسرا؟ وہ وہ تل کا ہوں حمر. شاباش. ٹھیک ہے. چلیں آگے بھی پڑھیے. اذالک کلب. ہوں کیا وہ ایک بلہ ہے؟ سوری نہیں کلبن. کتا ہے کتا ہے. ٹھیک ہے. لا ذالک ہوں قط. نہیں ہوں وہ ایک بلہ ہے. اچھا اب آپ مجھے یہاں بتائیے کہ یہ آ کیا ہے یہاں پر؟ احاذہ. اوکے حرف استفہام ہے. حرف استفہام ہے. شاباش. اس کو ہم کہیں گے حمزہ استفہام. اوکے حمزہ ٹھیک ہے. استفہام. آپ کو جہاں پر بھی ایسے الف لکھا ہوا نظر آئے گا اور وہ حمزہ حمزہ کہلاتا ہے جب الف پہ حرکت آ جاتی ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ حمزہ استفہامی کہنا ہے. ٹھیک ہے. او جی اچھا تو اب آپ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ جب ہم نے کسی بات کی تو ہم جانتے ہیں بس ہم نے تصدیق کرنے کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو پھر جی اس کا سوال ہم حرف استفہام سے حمزہ استفہام یا حل استفہام سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی اچھا تو اس کا ہم پھر جواب ماں یا لا کے ساتھ دے سکتے ہیں. ماں سوری نعم اور لا نعم. کے ساتھ دے سکتے ہیں. نعم اگر تو وہ بات درست ہے تو آپ صرف نعم بھی کہہ دیں گی تو آپ کا جواب کافی ہوگا. لیکن جب آپ لا کے ساتھ جواب دیں گی تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اب جی آپ نے کیا بتایا یہاں پر؟ لا ذالک قط. ذالک کتن. نہیں یہ کیا ہے؟ بلہ ہے. یہ ایک بلہ یہ ہے. ایک بلہ ہے. وہ ایک بلہ ہے. جی ہم اس کے لیے بلہ بھی کہہ سکتے ہیں بلی بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں کتن کے لیے کے معنی میں. ٹھیک ہے. اوکے اچھا تو آپ کو اس کی کلبن کی جمع آتی ہے؟ کلب اقلاب. نہیں اقلابن. پتہ. ٹھیک ہے. نہیں نہیں ٹھیک بتایا آپ نے. صحیح. اوکے اوکے ہوں اس کو ہم اچھا اکلبن اور کلابن دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. اوکے سمپل آپ اس کو کر لیں تو ایسے کلابن اور کلب اکلیبن. اکلیبن. ٹھیک ہے. اقلب. اوکے جی اب وہ جمع کی جمع پر آگے وہ چینج ہوتی جاتی ہے. آپ کلابن کے ساتھ ہی رکھیے گا اس کو. اچھا اس کے بعد آپ مجھے اگلا جملہ پڑھیے.
ये वाला। मा ज़ालिका, हम्म। वो क्या है। हम्म। ज़ालिका सरीरुन, वो एक बेड है, पलंग है। ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि शरीरुन की जमा क्या होगी। सरीरुन, हम्म। सरीरुन। नहीं, जमा मुकस्सर होगी ना। हाँ, सुरूरुन। सुर, सुरूरुन। ओके। हम्म। तो कैसे हम इसका करेंगे, जुमले में हम क्या करेंगे। आ, आ, इशारा कौन सा लगेगा। मोन्नस का, वाहिद मोन्नस, तिल का सुरुन। हम्म। ठीक हो गया। जजाकिल्लाह खैर। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जज़ाकल्लाह उस्ताद। बारकाल्लाह। अब आ जाए हमारे साथ नैयर सुल्ताना। जी उस्ताजा, अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नैयर जी। जी पढ़िए। जी उस्ताजा। आपने समझ जी आ गई ना आपको। चलो जी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मन हाजा व मन जालिका, हम्म। वो कौन है और वो कौन, हम्म। ये कौन है और वो कौन है। हम्म। ठीक है, अब मन जो यहाँ है वो हमने मन का आकिल इस्तेमाल के लिए किया। इस्तेमाल होता है ना। ठीक ठीक है। ठीक है। शाबाश। अच्छा, क्योंकि जी हमें पिक्चर में दोनों चीजें नजर आ रही है ना। एक हमें आकिल नजर आ रहा है और एक गैर आकिल चीज जी नजर आ रही है, करीब में भी और दूर में भी। ठीक है। तो चले, आप मुझे यहाँ पे मुब्तदा और खबर बताएंगी मन हाजा में। नैयर जी, आपकी आवाज नहीं आ जी रही। जी 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 sorry। हाँ जी, जी अब आ रही है प्लीज। उस्ताजा, सॉरी वो। हाँ जी, जी, हैंड फ्रीज लगाया इसमें था ना वो। मुझे मुब्तदा और खबर जी, बताइए। मुब्तदा जो है हाजा, और ठीक है। खबर उसकी मन। ठीक है, और ये वाव क्या है। वाव हर्फ अतफ, दो जुमलों को ठीक है। मिलाने के लिए। ठीक है, आगे फिर मन क्या बनेगा। मन खबर, और जालिका जो है वो मुब्तदा। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब दीजिए। हाजा मुदर्रिसन व हम्म। जालिका इमामुन, ये उस्ताद है शाबाश। और वो इमाम है, मस्जिद ये के इमाम या एक, इमाम है। देखें, हाँ एक उस्ताद है और वो एक इमाम है। ओ, अगर आप ये सॉरी, ये आप अदब के साथ बिल्कुल बोल रही हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर तर्जमा सीखना है ना, तो फिर यहाँ पर हम जी फिर जी, वो वाहिद का वाहिद में तर्जमा करेंगे। ये एक ठीक है। उस्ताद है और वो एक इमाम है। ठीक है। इमाम। अच्छा, मुदर्रिस जी, उनकी मुझे ये जमा बता एक दीजिए। मुदर्रिसन, हम्म। नहीं यार, इसकी कौन सी मुदर्रिसूना। इसकी जमा कौन सी बनेगी, मुदर्रिसूना। जी, मुदर्रिसून। जमा सालिम बनेगी। जमा सालिम ये बनेगी। मसाले। एक सेकंड, एक सेकंड। जी सॉरी। जी। मुदर्रिसूना। ठीक बताया जी, आपने। अच्छा ये कीजिए, हमारी बस 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, हम इसे कंप्लीट कर लें। माँ। ये जी, बताइए। माँ हम्म। जालिका, हम्म। वो क्या है। माँ हम्म। जो है ये हमारे पास खबर है, और ये गैर आकिल के लिए हम माँ इस्तेमाल ठीक करते है। हैं। और ठीक है। जालिका हजर, वो पत्थर है। हम्म। इसमें मुब्तदा खबर बताइए। जालिका मुब्तदा और हजरुन खबर। ठीक है, अगला कीजिए। हाजा सुक्रुन व जालिका लबनुन, सुक्करुन। ये नहीं, सुक्करुन, सुक्करुन। सुक्कर। हम्म। अच्छा सॉरी, सुक्कर। हम्म। हाजा सुक्करुन व हम्म। जालिका लबनुन, ठीक ये है। चीनी है और वो दूध हम्म। है। जी, ठीक हो गया।
कुछ और बताना है सर? जी नहीं, अब देखें ना, यहाँ पर हम चूंकि ना दूध को काउंट कर सकते हैं और ना चीनी को जी जी काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ हमने जी सिंपल कहा कि ये चीनी है और वो दूध है। तो जिन चीजों को हम काउंट कर दूध है सकते हैं, जी। फिर उनके लिए हम एक का तर्जमा जो है वो करते हैं। ठीक है, नहीं अच्छा, जी जी जी। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा उस्ताद। इकरा व उक्तब, ठीक रीड है, एंड राइट, पढ़िए और ठीक है, लिखिए। जी, हाजा हाजा हम्म, सुक्करुन हम्म, वज़ालिका लबनुन, ये हम्म, चीनी है और वो हम्म, लस्सी है या दूध है। उस पे मिल्क दूध लिखा है, हुआ था ना, इसलिए बोला। जी दूध है। जी जी ठीक है, दूध है। आगे, मन जालिका, मन जालिका हम्म, ये कौन है? जालिका इमामुन, ये इमाम है, ये एक इमाम ठीक है। है, ठीक है, जालिका आगे, क़ित्तुन, क्या हम्म, क्या ये एक बिल्ली है? ला हम्म, जालिका कल्बुन, नहीं वो एक हम्म, कुत्ता है। ठीक है, शाबाश, आगे कीजिए। मा हाजा, मा हम्म, हाजा ये क्या है? हाजा हजरुन, ये हम्म, एक पत्थर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब ये छोटा सा मुख्तसर सा हमारा लेसन था, इसमें हमने दूर और करीब के इशारों की प्रैक्टिस की है और कुछ नए अल्फाज आपके सामने आए हैं। ठीक है, आपने इनको याद करना है। सुक्करुन, लबनुन, इमामुन, हाजरुन। और आगे इसकी प्रैक्टिस में मजीद कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जो है लेसन नंबर 3 हम उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।